Hello students, this is class 11th economics and today we are starting the new topic of our subject, that is elasticity of demand. Before that we have studied about the theory of demand, and in this topic we have studied about the relationship between price and quantity demanded of any commodity. किसी भी कमोडिटी का प्राइस और उसका क्वांटिटी डिमांडेड क्या है, इनके बीच में हमने रिलेशन पढ़ा कि इनके बीच में क्या रिलेशन होता है। दोनों के बीच में रिलेशन जो हमने पढ़ा, दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड, दैट व्हेन द प्राइस इज इंक्रीजेस देन क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एनी कमोडिटी विल डिक्रीज ऑटोमेटिकली। सो व्हाट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? नेक्स्ट टॉपिक, द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज टोटली रिलेटेड टू the theory of demand. It is a part of theory of demand also, we can say that. So let's see what is elasticity of demand. Elasticity of demand, as I have mentioned here, degree of responsiveness or demand. Degree of responsiveness of demand means demand की responsiveness की degree, यानी how much demand respond फॉर अ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी की डिमांड जो है वो कितना रिस्पॉन्ड करती है टू चेंज इन इट्स प्राइस, उसकी प्राइस में चेंज हो जाने पर। यानी कि किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस चेंज हो जाए, किसी भी कमोडिटी की अगर प्राइस चेंज हो जाए, वो इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए, देन व्हाट इज द इफेक्ट, व्हाट इज द रिस्पॉन्स on the quantity demanded of that commodity. What is the changes of quantity demanded of a commodity? Means किसी भी गुड की या किसी भी सर्विसेज की प्राइस के इंक्रीज या डिक्रीज होने पर, किसी भी कमोडिटी के प्राइस की इंक्रीज या डिक्रीज होने पर किस रेट से उसकी डिमांड रिस्पॉन्ड करती है, यानी उसकी डिमांड किस रेट से इंक्रीज या डिक्रीज होती है, that is called elasticity of demand. The rate of responsiveness or the degree of responsiveness of quantity demanded, that is in the responsiveness of the price of the commodity, that is called elasticity of demand. इसकी एक दो डेफिनेशन हम और देखते हैं, that will be that elasticity of demand, it is defined. Elasticity of demand is defined as the ratio of percentage change in quantity demanded of a commodity and percentage change in price of a commodity. अदर जो हम डेफिनेशन इसकी देख सकते हैं, दैट इज elasticity of demand is defined as the ratio of percentage change in quantity demanded and percentage change in price of the commodity. That is called elasticity of demand. Means when the price of commodity will change, price of commodity में जो changes हो रहे हैं, price of commodity में होने वाले changes से क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी में क्या परसेंटेज चेंज हो रहे हैं, दैट इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सो ये हमारा हो गया है कंप्लीट, डेफिनेशन हमारा इसका कंप्लीट हो गया है। एक बार आप देख सकते हैं, मैंने दो डेफिनेशन आपको इजी लैंग्वेज में और आपको थोड़ा सा एक डिफाइन करके मैंने आपको कंप्लीट एक्सप्लेन कर दिया है। तो कि इसे अब इन इजी वर्ड्स अगर हम देखें तो क्या है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की प्राइस में जितना चेंज होता है, उसके अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज होता है, प्राइस में होने वाले चेंज के अकॉर्डिंग क्वांटिटी डिमांडेड में जो चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड ओनली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये होती है हमारी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब
देखिए the first type is, first of all we are starting that there are 5 types of elasticity of demand there. The first type is perfectly elastic demand. Perfectly elastic demand. Next one is perfectly inelastic demand. Next one is perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, and next one is highly elastic demand. Fourth one is highly inelastic demand. And next one is unit elastic demand. So how many types of elasticity of demand here? 5 types of elasticity of demand here is, that is perfectly elastic demand, perfectly inelastic demand, highly elastic demand, highly inelastic demand and unit elastic demand. So इनके हम साइंस देखते हैं क्या होंगे. Perfectly elastic demand, perfectly elastic demand होगा, that is ED equals to infinity. ED यानी कि elasticity of demand that equals to infinity. Next, elasticity of demand that is equals to 0. It is perfectly inelastic. Next, highly elastic, when elasticity of demand is greater than 1. Highly inelastic, when elasticity of demand is less than 1. Unit elastic, when elasticity of demand is equal to 1. There are 5 types of elasticity of demand here. Perfectly elastic, ED equals to infinity. Perfectly inelastic, ED equals to 0. Highly elastic, ED is greater than 1. Perfectly inelastic, ED is less than 1. Unit elastic, that ED is equals to 1. ये हमारे 5 टाइप्स हो गए हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की. अब हम नेक्स्ट वीडियो में जो हम पार्ट देखेंगे, इनको 1 बाय 1 हम करते हैं एक्सप्लेन. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे एक्सप्लेन क्या, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड देखिए क्या होता है. परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मीनिंग होता है, देखिए व्हेन द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज परफेक्टली इलास्टिक. जैसे देखिए जब मैंने अभी आपको डेफिनेशन बताई थी डिमांड्स की या इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की, कि परसेंटेज चेंज जो होता है क्वांटिटी डिमांडेड में, वो किस डिग्री से होता है, इन द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ प्राइस ऑफ कमोडिटी. सो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड क्या होगा, व्हेन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, percentage change in quantity demand is percentage change in quantity demand is rising or falling, is rising or falling. Percentage change in quantity demand is rising or falling without any change
भी कमोडिटी की जो डिमांड है वो राइज और फॉल होती है, या हम ये कह सकते हैं कि इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है, बजाय किसके कि उसकी प्राइस में कोई भी चेंज ना हो। उसके प्राइस में कोई भी चेंज नहीं आता, उसके बावजूद भी जो डिमांड है वो इंक्रीज या डिक्रीज होती रहती है। तो इसको हम कैसे देखेंगे, अगर इसको जो सिंबल्स हैं उनके फॉर्म में देखें कि प्राइस तो क्या है, कांस्टेंट है, प्राइस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, यहाँ पर प्राइस के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, और जो डिमांड है प्राइस में कोई चेंज नहीं है, लेकिन डिमांड जो है, क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज भी हो रही है और डिक्रीज भी हो रही है। क्वांटिटी डिमांड जो है वो इंक्रीज और डिक्रीज दोनों हो रही है। अगर मैं देखूँ यहाँ पर, देखिए मैं एक बॉक्स के थ्रू आपको ये एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी डिमांडेड हो गया, ये हमारा हो गया प्राइस। मान लीजिए यहाँ पर 10 रुपीज़ प्राइस है, तो 10 रुपीज़ प्राइस में आप 50 यूनिट्स किसी भी गुड की परचेज कर रहे हैं। ₹10 प्राइस में आप किसी भी गुड की 50 यूनिट्स परचेज कर रहे हैं। अब प्राइस में तो कोई चेंज नहीं हुआ, प्राइस तो स्टेबल है, मींस 10 रुपीज़ में ही आप परचेज कर रहे हैं, लेकिन आपने इसकी डिमांड कितनी कर दी, 100 यूनिट्स करने लग गए, यानी प्राइस में चेंज किए बिना ही क्या हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई। हाउ इट इज कॉल्ड द परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ये होती है परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। अब हम इसमें देखें, इसको हम देखेंगे डायग्राम के थ्रू। इससे पहले हम इसे डायग्राम के थ्रू देखें, मैं आपको एक फॉर्मूला बताती हूँ इसका, कि आप जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है, क्योंकि हमने जो सेकंड डेफिनेशन जो हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की पढ़ी थी, तो परफेक्टली इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की जो सेकंड डेफिनेशन हमने पढ़ी थी, तो उसमें हम कैसे निकालेंगे, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज in quantity demanded upon percentage change in its price। ये इसका फॉर्मूला होगा। तो अभी जो हमने परफेक्टली इलास्टिक का जो क्वेश्चन देखा, तो जो अभी हमने ये टेबल जो हमने बताई 10-10 वाली और 50 और 100 वाली, तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम डायग्राम देखें, देखिए इसका डायग्राम कैसे बनेगा। यहाँ पर मैं लेती हूँ प्राइस ऑफ द कमोडिटी, और यहाँ पर हम लेंगे क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ कमोडिटी, दैट हाउ मच। ये हो गया हमारा प्राइस ऑफ कमोडिटी एंड दैट इज क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। नाउ ये होता है कि हमारा प्राइस जो है इसमें कोई चेंज नहीं आ रहा है, यानी कि प्राइस कैसा है, स्टेबल। ₹10 हमने एग्जांपल लिया था अभी, ₹10 का, ये हो गया हमारा प्राइस। अब क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो पहले तो इतनी थी, क्यों, अब क्या हुआ, अचानक से वो 10% लेस हो गई। नो चेंज इन प्राइस बट द क्वांटिटी डिमांडेड हैज बीन इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो ये फर्स्ट ए पॉइंट था, देन बी आ गया और देन सी आ गया। यहाँ पर भी 10% क्या हो गई है, यहाँ कम हो गई है, और यहाँ पर 10% इंक्रीज हो गई है। सो अब मैं अगर इसकी बात करती हूँ परसेंटेज चेंज की, तो देखिए परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड कितना है, क्वांटिटी डिमांडेड में कितना चेंज हो रहा है, 10%। प्राइस में कितना चेंज हो रहा है, प्राइस में तो कोई चेंज हुआ ही नहीं है, मीन्स 0। सो 0% तो 10/0, 10/0 क्या आएगा, 10 आएगा क्या, नहीं। 10/0 का मीन्स होता है जब भी आप 0 को किसी में डिवाइड करते हैं, 0 से किसी को भी डिवाइड करते हैं, किसी भी नंबर को, तो उसका आंसर आता है इन्फिनिटिव, मीन्स पता नहीं कितना, इन्फिनिटिव। नो आइडिया हाउ मच द
फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से लर्न रखना है, अभी बहुत सारे जगह पे काम आने वाला है। न्यूमेरिकल्स आएंगे इस फॉर्मूले से आपके, परसेंटेज चेंज इन क्यूडी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। इससे हम अभी आगे बहुत कुछ सॉल्व करने वाले हैं इस फॉर्मूला से। सो ये हो गया हमारा परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है उसमें हम करते हैं, नेक्स्ट जो हमने टाइप देखा था ये तो हो गया AD इज इक्वल्स टू इन्फिनिटिव। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली सेकेंड टॉपिक हमारा जो है, सेकेंड डिग्री जो है परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड का मीनिंग क्या होता है? ED इक्वल्स टू 0। अब देखिए यहाँ पे क्या है डेफिनेशन इसका ED इक्वल्स टू 0 का, देखते हैं। व्हेन द डिमांड ऑफ अ कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांड, यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज 0। क्वांटिटी डिमांडेड जो है उसमें चेंज जो होगा वो क्या होगा, बिल्कुल 0 होगा। और प्राइस में जो चेंजेस आएंगे, प्राइस में होने वाले जो चेंजेस होंगे वो क्या होंगे, ज़्यादा या कम। यानी प्राइस तो इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें कोई चेंज नहीं हो रहा। यानी कि चाहे कितनी भी प्राइस इंक्रीज हो जाए, चाहे कितनी भी प्राइस डिक्रीज हो जाए, हमें उसकी डिमांड से कोई फर्क नहीं पड़ता। हम उसकी प्राइस को नेग्लेक्ट कर देते हैं और जितनी यूनिट्स हम आज यूज़ कर रहे हैं उतनी ही यूनिट्स हम प्राइस के चेंज होने के बाद या उसके पहले करेंगे। यानी कि प्राइस के चेंज होने या ना होने से इस क्वांटिटी डिमांड पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो ये क्या है, परफेक्टली इलास्टिक। इसी को हम क्या कहते हैं, यानी कि यहाँ पर जो डेल QD है वो क्या होगा, 0। और यहाँ पर डेल P जो है वो क्या होगा, अप एंड डाउन। क्लियर। अब हम बात करते हैं इसको फॉर्मूलाज में देख लेते हैं। देखिए प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, लेकिन जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें कोई चेंज नहीं है। यहाँ देखते हैं एक न्यूमेरिकल फॉर्मूला के थ्रू इसको हम देखेंगे। तो यहाँ देखिए, यहाँ मैंने प्राइस ले लिया है, दिस इज क्वांटिटी डिमांड, प्राइस एंड दिस इज क्वांटिटी डिमांड। सो प्राइस अगर मान लीजिए ₹10 है तो हम यूनिट्स परचेज कर रहे हैं 50। प्राइस हो गई ₹5 तो भी हम यूनिट्स परचेज कर रहे हैं 50। प्राइस हो गई है 20 तो भी हम यूनिट्स परचेज कर रहे हैं कितनी, 50। यानी कि यहाँ पर प्राइस डिक्रीज हो गई, यहाँ पर प्राइस इंक्रीज हो गई, लेकिन यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसको एक डायग्राम के थ्रू हम देख लेते हैं। देखिए ये हमारा OX एक्सिस लिखना बहुत जरूरी है, पहले भी मैं एक्सप्लेन कर चुकी हूँ इस चीज़ को आपको कई बार। प्राइस ऑफ कमोडिटी, क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी। अब इसमें हम प्राइस ऑफ कमोडिटी और क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ अ कमोडिटी, इसमें देखिए अभी मैंने आपको बताया कि क्वांटिटी डिमांडेड क्या है। देखिए हम इसके अकॉर्डिंग बनाते हैं, प्राइस तो क्या हो रही है, इंक्रीज या डिक्रीज, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड कैसी है, स्टेबल है। यानी क्वांटिटी सिर्फ इतनी है OQ से क्वांटिटी ना तो ज़्यादा हुई है और OQ से क्वांटिटी ना ही कम हुई है। सो प्राइस जो है वो क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। पहले OP था, OP1 हो गया, इंक्रीज हो गया, और फिर उसके बाद क्या हो गया, OP2 हो गया, यानी डिक्रीज हो गया। तो ये क्या हो गया, हमारा क्वांटिटी डिमांडेड सेम है, यानी क्वांटिटी डिमांडेड रिमेन्स स्टेबल बट द प्राइस इज इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ये हो गया हमारा डायग्राम।
demanded upon percentage change in price. अप्लाई करते हैं फॉर्मूला को. हाउ मच द परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड? नो चेंज, देन इट इक्वल्स टू 0 अपॉन हाउ मच द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. तो इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए ये 10% फॉर एग्जांपल हम ये ले रहे हैं, 10% इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, तो कितना चेंज हो गया? 10. देन वी व्हेन वी डिवाइड 0 बाय सम नंबर, दैट इज आंसर विल बी 0. So elasticity of demand is equals to 0 means चाहे प्राइस में कितना भी चेंज आ जाए, प्राइस में चाहे कितना भी चेंज आ जाए, ये जो क्वांटिटी है इसकी वो कभी भी चेंज नहीं होती है. अब ऐसा किन सिचुएशंस में होता है कि प्राइस चाहे कितनी भी हो जाए लेकिन हम उतनी क्वांटिटी यूज करेंगे? ऐसा होता है हमारी नेसेसरी गुड्स में. ये कहाँ पर होता है? नेसेसरी गुड्स में ये जो रूल है वो अप्लाई होता है. जो हमारी नेसेसरी कमोडिटीज हैं, नेसेसरी गुड्स और सर्विसेज हैं, वहाँ पर जो हमारी लाइफ के लिए ज़रूरी है, जैसे क्योंकि नेसेसरी जो चीज़ें हैं उनमें आप कुछ भी अप्लाई कर लीजिए, कितनी भी प्राइस उनकी ले लीजिए, आप क्या करेंगे? उसको परचेज करेंगे ही करेंगे. जैसे मैं बात करती